بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں دلہن بنی شاہی تخت پر بیٹھی تھی، تبھی میں نے سامنے لگے کداور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ نہ جانے میں کیوں مسکراتی تھی۔ لال رنگ کا جوڑا پہنے سونے چاندی کے زیورات سے سجی میں کسی ملکہ کی طرح اس تخت پر بیٹھی تھی۔ تبھی سامنے سے ایک عورت آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ جس شان سے چل رہی تھی ایسے لگتا جیسے وہ یہاں کی شہزادی ہے۔ اچانک ہی چپکے سے میرے برابر میں کوئی آ کر بیٹھ گیا۔ اب میں گھبرا رہی تھی، جانتی تھی کہ یقیناً یہ میرا شوہر ہوگا، لیکن اس کے چہرے پر تو پھولوں کا صحرا تھا اور میں اسے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی میں نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھنا چاہا۔ سامنے کھڑی عورت نے وہ پھولوں کا صحرا ہٹا دیا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اپنے شوہر پر پڑی تو اچانک ہی میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، نہیں نہیں، میرے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا شوہر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب میں دلہن کے جوڑے میں بھاگ رہی تھی، جبکہ وہ لمبی چوڑی عورت اور اس کا وہ دلہا بنا بیٹا میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے مجھے ایک پتھر سے زوردار ٹھوکر لگی اور بے اختیار میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ میرا نام فریال ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں۔ میرے ابا ایک مسجد کے امام تھے اور اماں ایک دیندار عورت جو محلے کی بچیوں کو مدرسہ پڑھاتی تھی۔ ہم تینوں بہنوں نے بھی اماں سے ہی قرآن پاک پڑھا تھا۔ ابا مسجد کی امامت کرواتے تھے، لیکن ان کی تنخواہ بہت ہی معمولی تھی، جس میں ہمارا گزارا بمشکل ہوتا۔ کئی بار میں نے ابا سے کہا کہ ابا میں کوئی نوکری کرتی ہوں، اسکول میں جا کر پڑھاتی ہوں، کیونکہ ہم تینوں بہنوں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا، لیکن ابا اس بات پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، مجھ سے 2 بڑی بہنیں تھیں۔ اب ان کی شادی کی عمر ہو گئی تھی، لیکن اماں ابا اس بات پر پریشان رہتے کہ شادی کرنے کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس وقت اماں ابا کے پاس بالکل بھی نہیں تھے۔ پھر ابا کہتے کہ اللہ ہی کوئی وسیلہ بنائے گا، جبکہ میری آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجے تھے، کیونکہ ہم جس کالونی میں رہتے تھے وہاں پر سارے ہی گھر بہت خوبصورت تھے۔ رہنے والے امیر امیر لوگ، ان کی خوبصورت گھر میرے خوابوں میں بھی ایسے ہی گھر آتے تھے۔ اپنے اکثر ہی عجیب و غریب خواب دیکھتی۔ میں خود کو ایک محل میں بیٹھا ہوا دیکھتی تھی، جیسے میرے آس پاس بہت سی نوکرانیاں کھڑی ہیں جو میرے ناز نخرے اٹھا رہی ہیں، اور میں بڑی شان سے کسی ملکہ کی طرح وہاں بیٹھی ہوں۔ میں اکثر اس خواب کا ذکر اماں کے سامنے کرتی تو اماں کہتی، یہ سب تیرے دماغ میں جو خناس بھرا ہے نا، اس کی وجہ سے ہے، تجھے ایسے خواب نظر آتے ہیں، اونچے اونچے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ میں سانس لینا تو چھوڑ سکتی تھی، لیکن ایسے خواب دیکھنا نہیں، کیونکہ یہی میرے جینے کی وجہ تھے۔ میں سمجھتی کہ ماں باپ کے گھر تو میں نے صرف غربت دیکھی ہے، لیکن جب جس انسان سے میری شادی ہوگی تو وہ بہت امیر ہوگا، اس کا محل نما گھر ہوگا، کیونکہ خدا نے مجھے خوبصورتی جیسی دولت سے بھی نواز رکھا تھا۔ گو کہ ہم تینوں بہنیں ہی خوبصورت تھیں، لیکن خدا نے مجھ پر خاص کرم کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو اکثر بچیاں مجھ سے میرے سرخ و سفید رنگت اور سنہری آنکھوں کی وجہ پوچھتے تھے اور کہتے کہ تمہارے ماں باپ کا رنگ بھی اتنا ہی گورا ہوگا اور تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ ان کی باتوں نے میرے اندر غرور پیدا کر دیا تھا۔ میں سوچتی کہ ضرور میں بہت ہی خوبصورت ہوں، تبھی تو سب میری تعریف کرتے ہیں۔ اب میں ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھتی رہتی تھی، گو کہ میں ایک مولوی کی بیٹی تھی، لیکن جس طرح میری دونوں بہنیں صبر و شکر کا پیکر تھیں، اسی طرح میں ان کے بالکل الٹ تھی۔ میری آنکھوں میں تو ہر وقت رنگین خواب سجے رہتے۔ جب میں نے ضد کر کے کالج میں داخلہ لینا چاہا تو اماں ابا نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اماں ایک دن مجھے گرتے ہوئے کہنے لگی، تیری ہی وجہ سے میں پریشان رہتی ہوں، جو تو آسمانوں پر اڑتی پھرتی ہے، دیکھنا کوئی نہ کوئی رنگ دکھائے گی۔ ہمیشہ اماں کو مجھ پر شک رہتا تھا اور میں اس بات پر چڑھتی تھی۔ جب بھی میں خواب دیکھتی تو پورا دن اس کے حصار میں رہتی تھی، لیکن آج جو خواب دیکھا تھا وہ بڑا ہی عجیب تھا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب میری نظر اپنے شوہر پر پڑی تھی تو میں کتنی بری طرح ڈر گئی تھی۔ وہ انتہائی کالا کلوٹا اور خوفناک شکل والا انسان تھا، جسے دیکھ کر ہی انسان کو خوف محسوس ہو، اور وہ میرے ساتھ زبردستی کیوں کر رہی تھی۔ اب میں ان خوابوں سے ڈرنے لگی تھی۔
हाँ, मैं सोचती थी कि मेरी जिंदगी में आने वाला शख्स किसी शहजादे की तरह खूबसूरत हो, उसका एक महल नुमा घर हो, लेकिन उस रात का मंजर तो आज भी मेरा दिल दहला देता। इसलिए मैं सोने लगती तो खुदा से दुआ करती कि अल्लाह मुझे आज कोई अच्छा ख्वाब दिखाना, उस दिन जैसा बुरा नहीं। मेरी दोनों बड़ी बहनें मोहल्ले से आने वाले कपड़े वगैरह भी सिलाई कर लेती थी। फिर एक दिन अम्मा मुझे कहने लगी, कॉलोनी के बंगले में जो नई किराएदार रहने के लिए आए थे, वहाँ से एक औरत आई थी, अपने 3 जोड़े देकर गई है सिलाई करने के लिए, लेकिन आज 1 महीना हो गया है, वो वापस लेने नहीं आई उन जोड़ों को। हालांकि सूट बहुत ही खूबसूरत हैं और महंगे भी लग रहे हैं। मैं तो कहती हूँ बेटा, तुम जाकर देखो, अपनी बाजी का अबाया पहन जाना और पता तो करो कि वो औरत कहाँ है और अपने कपड़े लेने क्यों नहीं आई। अम्मा को बहुत फिक्र हो रही थी। अब मैं अम्मा के बताए हुए पते पर पहुंच तो गई थी, लेकिन उस बंगले को देखकर बुत बनकर साकित खड़ी थी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही था जो मैं अपने ख्वाबों में देखा करती थी। बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजा हुआ सफेद दरवाजे वाला ये बंगला मुझे अपने ख्वाबों की ताबीर लग रहा था। जैसे ही मैं उस बंगले के गेट के पास गई तो पास से गुजरने वाला शख्स कहने लगा, अरे बेटी, इस बंगले में क्यों जा रही हो? वो मुझे ये कपड़े देने हैं। मैं घबरा कर उस आदमी से कहने लगी तो वो बड़े पुरइसरार लहजे में कहने लगा, इसमें जो लोग रहते हैं वो बड़े ही अजीब हैं, किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखते और इस सोसाइटी के लोग तो इनके घर आते जाते भी नहीं। बस यूं समझो कि कोई नहीं जानता कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आए हैं, इसलिए तुम भी जाने में एहतियात करो। वो न जाने क्यों मुझे डरा रहा था, जबकि मैं उसके अंदर जाने के लिए मचल रही थी, क्योंकि मैं उस खूबसूरत से महल नुमा बंगले को अंदर से भी देखना चाहती थी कि ये अंदर से कैसा है। वो आदमी तो मुझे समझाकर चला गया था, लेकिन मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और उसके अंदर आ गई। मैंने देखा मरकजी दरवाजा जो यकीनन बंगले के अंदर की तरफ जाता था, वो मुकम्मल तौर पर बंद था। तभी मैं लॉन की तरफ चली आई। वहाँ इस कदर खूबसूरत फूल लगे हुए थे। जैसे ही मैंने एक गुलाब का फूल तोड़ना चाहा, अचानक ही एक तेज और करख्त आवाज मुझे सुनाई दी, कौन हो तुम लड़की और अंदर कैसे आई हो? मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने लंबा चौड़ा वजूद लिए एक औरत खड़ी थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इतनी हसीन औरत नहीं देखी थी, खास तौर पर उसके लंबे बालों की चुटिया जो उसके पाँव को छू रही थी, गले में सोने का हार पहने और हाथों में मोटी मोटी सोने की चूड़ियां। उसकी दौलत देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं घबराए हुए लहजे में कहने लगी, वो आप ये कपड़े देकर आए थे सिलाई करने के लिए, तो मैं यही वापस देने आई हूँ। मैंने जल्दी से वो शॉपर उनकी तरफ बढ़ा दिया था। तभी एकदम से उसने छीनने के अंदाज में मुझसे वो शॉपर झपटा और कहने लगी, हाँ, वो हमारी मुलाजमा कपड़े देने गई थी, तुम्हें मुआवजा मिल जाएगा, अब तुम जाओ यहाँ से। उसने मुझे गेट के पास खड़ा कर दिया था, जबकि मैं उसके मुलाजमा के आने का इंतजार कर रही थी। फिर मैंने देखा एक निकाब पोश औरत हाथों में पैसे पकड़े मेरे पास आई थी। ये लो पैसे, मालिक ने दिए हैं। उसका लहजा बड़ा ही भारी सा था। मैंने जल्दी से पैसे पकड़ लिए, फिर उसका शुक्रिया अदा करके वापस घर आ गई। अम्मा को पैसे दे दिए। अम्मा कहने लगी, अरे इतने ज्यादा पैसे दे दिए, 3 जोड़ों के तो सिर्फ 1000 रुपए बनते थे और उसने 5000 रुपए दे दिए। अम्मा बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा इतनी अमीर औरत है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उसकी दौलत और जेवरात देकर उसके लिए 5000 की क्या हैसियत होगी। अम्मा कहने लगी, हाँ, अगर ऐसे गाहक मिलते रहें तो हमारे भी हालात बदल जाएं। लेकिन मैं तो रात दिन उसी महल के सपने देखने लगी थी। अक्सर ही ख्वाबों में वहां पर खुद को चलते फिरते देखती, हाथों में मोटे मोटे सोने के कंगन पहने और गले में बड़ी सी माला डाले। मैं किसी मलिका की तरह अपने आप को वहां घूमते फिरते देखती। फिर एक दिन वो निकाब पोश मुलाजमा फिर से उस मालकिन के कपड़े लेकर आई। जैसे ही मेरी नजर कपड़ों पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। वो इंतहाई रेशमी और मुलायम थे, ऐसे लगता कि हाथ लगाने से भी वो मैले हो जाएंगे। फिर वो निकाब पोश मुलाजमा अम्मा से कहने लगी, मालकिन को तुम्हारे हाथ के कपड़े बहुत पसंद आए, इसलिए तो फिर से ये कपड़े सिलवाने के लिए लाई हूँ। लेकिन आजकल वो बड़ी परेशान है, अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रही है।
अब देखो रिश्ता कहाँ मिलता है, कॉलोनी के लोग तो वैसे ही उनसे चिढ़ते हैं। तो अम्मा कहने लगी, अरे वो इतनी अमीर औरत है, उनको तो कोई भी खुशी खुशी अपनी बेटी दे देगा। तो मुलाजमा पुरस्कार लहजे में कहने लगी, यही तो बात है कि वो अमीर औरत तो है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उस कॉलोनी में उसके मुतालिक फैली हुई हैं, इसलिए कोई भी उसके साथ ताल्लुकात कायम नहीं रखना चाहता। अब मैंने जो उस मुलाजमा के मुंह से ये बात सुनी तो मेरा दिल खुशी के मारे उछलने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा सपना जल्द पूरा होने वाला है। क्या पता मेरी शादी उस खूबसूरत महल में हो जाए। अब मैं दिन रात उन्हीं सोचों में मुब्तला रहती। जब भी सोती तो अपने आप को दुल्हन बना हुआ देखती। मेरा बस नहीं चल रहा था कि अम्मा से कह दूं कि वो जाकर उस मालकिन से बात करें कि तुम्हारे घर में भी 3 जवान बेटियां बैठी हैं, उनमें से ही किसी एक का रिश्ता मांग लो। क्या पता उस मालकिन को मैं पसंद आ जाऊं। मैं किस कदर खुशफहमी का शिकार थी, शायद इसी वजह से क्योंकि मैं तीनों बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। फिर एक रात मैं ऐसे ही चारपाई पर कमरे में लेटी थी, जबकि अम्मा और अब्बा बाहर सहन में बैठे थे। अब्बा अम्मा से हंस हंस कर बातें करते हुए कहने लगे, अरे देखो तो सही इस किताब में क्या लिखा है, ये वजीफा करने से हर मुराद पूरी हो जाती है। मुझे तो यकीन नहीं आता ऐसी बातों पर। तो अम्मा कहने लगी, नाउज़ बिल्ला मौलवी साहब, मौलवी होकर कैसी बातें करती हैं, क्या अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है, वो हर मुराद पूरी करने वाला है। क्या पता इस वजीफे में भी इतनी ताकत हो कि दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैं बड़े गौर से उन दोनों की बातें सुन रही थी और मेरा दिल मचल रहा था कि मैं जल्दी से अब्बा से जाकर वो किताब छीन लूं। मैं देखना चाहती थी कि वो वजीफा कैसा है। मैंने सोच लिया था कि ये वजीफा हर सूरत में करके रहूंगी और उस मालकिन के बेटे से शादी भी। दूसरे दिन मैं अब्बा के कमरे से छुपकर वो किताब ढूंढ रही थी, लेकिन अम्मा ने मुझे देख लिया। क्या कर रही है तू यहाँ? वो मुझे डांटते हुए कहने लगी, अम्मा वो किताब कहाँ रखी है जो कल अब्बा आपको दिखा रहे थे? अब मुझसे रहा नहीं गया था। अम्मा घूरते हुए कहने लगी, क्यों, तुझे क्या जरूरत पड़ गई उस किताब की? मैं कहने लगी कि अम्मा मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक सहेली को चाहिए, इसलिए पूछ रही हूँ। मैंने उनसे टाल मटोल से काम लिया था। फिर अम्मा ने बादल न ख्वास्ता मुझे वो किताब निकाल कर दे दी थी। उसे खुशी खुशी में अपने पास लेकर आई और गौर से पढ़ने लगी। फिर वो निकाब पोश मुलाजमा फिर से आई थी उस मालकिन के कपड़े लेने। जब मैंने अम्मा और उसकी बातें सुनी, वो अम्मा से कह रही थी कि मैंने तुम्हारी बेटियों के बारे में मालकिन से बात की थी, लेकिन तुम एक बार चलकर खुद देख लो, आगे मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। जरूर वो मालकिन मुझे ही पसंद करेगी, क्योंकि मैं अपनी सारी बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। अब तो खुशी के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। दूसरे दिन मैंने देखा अम्मा चादर पहनकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। अम्मा कहाँ जा रही है? तो मैं जाते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। अम्मा कहने लगी, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ। मैं समझ गई कि उसी महल नुमा बंगले में जा रही हैं, मालकिन के बेटे को देखने। फिर शाम को अम्मा वापस आ गई, लेकिन बहुत खामोश खामोश सी थी। ना तो बाजियों ने उनसे सवाल किया और ना ही मैंने। मैं तो उनसे पूछते हुए डर रही थी, लेकिन मुझे बेचैनी थी कि अम्मा इस कदर खामोश क्यों हैं। लेकिन दूसरे दिन मैंने सुना जब अम्मा अब्बा से कह रही थी, अरे वो तो बड़ी ही अजीब औरत है, इस कदर खौफनाक और मकार लग रही थी, और उसका बेटा तो घर में नजर ही नहीं आया। मुझे तो वो हरगिज पसंद नहीं आई। औरत 2 नंबर लग रही है। सही कहते हैं वो कॉलोनी के लोग, वो औरत ठीक नहीं है। मैं तो हरगिज अपनी बेटियों की शादी उस घर में नहीं करूंगी। अम्मा ने साफ इनकार कर दिया था और मेरे अरमानों पर औस पड़ गई थी। अब तो मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था और मैं पागलों की तरह वो वजीफा करने लगी थी। मैं सोच रही थी कि जब अम्मा को वो रिश्ता पसंद नहीं आया तो इस वजीफा करने की वजह से मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाएगी और वो मालकिन खुद मेरा रिश्ता लेने इस घर में आएगी। फिर जब एक दिन मैं वजीफा कर रही थी, अम्मा ने मुझे देख लिया। ये क्या कर रही है तू? दोनों बाजियां भी आ गई थी। अम्मा, मैं वजीफा कर रही हूँ, आपने तो वहाँ मेरा रिश्ता नहीं किया। इतने अमीर घराने से हमारा रिश्ता आया था, आपने हाँ क्यों नहीं की? मैं हद से ज्यादा बदतमीज हो चुकी थी। अम्मा ने मुझे घूर कर देखा और गुस्से से कहने लगी,
जानती भी है तो उस मकार औरत की हकीकत वो एक नंबर की चालाक और धोखेबाज औरत लग रही थी। मैं तो हरगिज अपनी बेटियों की शादी उसके बेटे से नहीं करूंगी। और फिर उसके बेटे को तो मैंने देखा भी नहीं, तो पागल तो नहीं हो गई जो ऐसी बातें कर रही है। अम्मा, वो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाली, हमारी जिंदगी ऐश से गुजरेगी। आप मेरी शादी उसके बेटे से कर दें, बस मुझे नहीं मालूम। मैं बुरी तरह अम्मा से बदसन हो चुकी थी, इसलिए अम्मा की किसी बात को खातिर में नहीं ला रही थी। अम्मा और बाजियां परेशान हो चुकी थी। अम्मा कहने लगी, पहले तो ये ऐसी नहीं थी। हाँ, घर में सबसे छोटी है, इसलिए मैं कभी कभी इसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन आज तो ये बहुत ज्यादा नाफरमान लग रही है। आखिर इसे हुआ क्या है? बाजियां कहने लगी, अम्मा, ये नादान है, बहुत जल्द समझ जाएगी। जब उस औरत का असल रूप इसके सामने आएगा, ये समझ नहीं पा रही कि उसकी चालबाजी क्या है। अब बाजी मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी एक ही जिद थी कि मुझे उसी औरत के बेटे से शादी करनी है। मैं जो इतने सालों से अपनी आंखों में ख्वाब सजा रही थी कि मेरी शादी किसी महल में हो, मैं किसी महल में राज करूं, और आज अम्मा वो मेरे सारे ख्वाब तोड़ रही थी। ऐसे में हरगिज़ होने नहीं दूंगी। लेकिन मैंने वो वजीफा जारी रखा था। वैसे भी वो 40 दिन का था। मैं चाहती थी कि वो अमीर औरत अपने बेटे के लिए अम्मा से मेरा रिश्ता लेने आ जाए। लेकिन एक दिन कुछ लोग बाजियों के रिश्ते के लिए आए। उन्होंने देखते ही बाजियों को पसंद कर लिया था। वो अपने 2 बेटों का रिश्ता लेकर आए थे। अजीब, गंवार और जाहिल किस्म के लोग लग रहे थे, बिल्कुल ही गरीब। उनके हुलिये से साफ जाहिर था कि वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अम्मा ने कह दिया कि हम लड़कों को देखने आएंगे, तभी कोई फैसला करेंगे। उनके जाने के बाद मैं अम्मा से कहने लगी, आप उन लोगों के घर में बाजियों का रिश्ता करेंगी? देखो तो सही, ये कितने गरीब लग रहे हैं। अम्मा कहने लगी, गरीब है तो क्या हुआ, बहुत शरीफ हैं और एतमाद वाले लोग। मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती, आजकल का दौर बहुत खराब है। यूं अम्मा अब्बा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। अब्बा जो एक मौलवी थे, वो तो खुद भी गुर्बत भरी जिंदगी गुजारते आए थे। आखिर अपनी बेटियों के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकते थे? मैं हैरान थी कि जब बाजियां भी इस शादी के लिए हंसी खुशी रजामंद हो गई थी, लेकिन मेरे दिल को करार नहीं मिल रहा था। मैं जानती थी कि बाजी की शादी के बाद किसी ऐसे ही गरीब घराने में अम्मा अब्बा ने मेरा भी रिश्ता कर देना है, लेकिन मैं सारी जिंदगी सिसक सिसक कर नहीं गुजार सकती। फिर मेरे उन ख्वाबों का क्या होगा जो मैं इतने सालों से देखती आ रही हूँ। फिर एक दिन मैं चुपके से आधी रात को घर से निकली। मैं उसी सफेद दरवाजे वाले खूबसूरत बंगले में जा रही थी, उस औरत से बात करने के लिए, क्योंकि मैंने सुना था कि उस अमीर औरत की मुलाजमा कह रही थी कि कोई भी उसके बेटे को अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसकी हरकतें कुछ मशकूक हैं। सब लोग इस पर शक का इजहार करते हैं। मैं खुश थी कि मैं उससे कहूंगी कि मुझे उसके बेटे से शादी करने पर कोई एतराज नहीं, वो मेरा रिश्ता मांगने आए। अजीब सी खुशी हो रही थी। इतने सालों से मैं ये सारे ख्वाब देखती आ रही थी और आज उनके पूरा होने का वक्त आ गया था। मैं आधी रात को उस बंगले में आई थी। मैंने देखा पूरे बंगले पर खामोशी तारी थी, जबकि सिर्फ एक कमरे की लाइट चल रही थी। अब मैं अंदर आ चुकी थी, क्योंकि उस घर का दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। जैसे ही अंदर आई तो अंदर का वहशत और सन्नाटा देखकर जान निकल गई। अभी मेरी नजरें उस औरत को तलाश कर ही रही थी कि अचानक उसकी भारी आवाज मेरे पीछे से आई थी। कौन हो तुम लड़की, और आधी रात को इस घर में क्या कर रही हो? मैं एकदम ही दहशत से पलट गई। फिर घबराते हुए उससे कहने लगी, वो मैं आपसे जरूरी बात करने आई हूँ। दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। उसने हैरान होकर मुझे देखा था। फिर वो कहने लगी, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? उसकी आंखों में बहुत हैरत थी। तो मैं कहने लगी, नहीं, मैंने आज तक उसे नहीं देखा, लेकिन मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप इसी वजह से परेशान है ना कि आपके बेटे का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, इसीलिए मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि आप मेरा रिश्ता लेने आइए मेरे माँ बाप से। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर पहली बार खुशी की चमक आई। फिर वो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेने आऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो अच्छी बात नहीं होगी। याद रखना, जो मेरी बेइज्जती करते हैं फिर मैं उनसे बदला लेकर रहती हूँ।
मैं उनसे कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने इनकार भी किया तो मैं आपके साथ हूँ। मैं इतनी निडर हो जाऊंगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। फिर वो कहने लगी, ठीक है, कल मेरा इंतजार करना, मैं कल जरूर तुम्हारे घर आऊंगी। फिर अगले दिन न जाने रात को कौन सा पहर था, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही अम्मा ने दरवाजा खोला तो सामने उस औरत को देखकर हैरान रह गई। वो उसकी अमीरी से मरऊब हो गई थी, क्योंकि उसने हाथों में मोटी मोटी सोने की अंगूठियां और कड़े पहन रखे थे, जबकि गले में हीरों की माला चमक रही थी। लेकिन अम्मा को उसकी आंखों में साफ हवस की झलक नजर आ रही थी, जैसे वो किसी चीज की तलाश में यहाँ आई हो। अम्मा कहने लगी, बहन, मुझे यहाँ रिश्ता नहीं करना, तो आप फिर यहाँ क्यों आई है? अम्मा उसे दरवाजे से ही वापस भेजना चाहती थी। तभी वो भारी और गुस्से वाले लहजे में कहने लगी, जब तुम्हारी बेटी इस शादी पर राजी है तो तुम्हें क्या एतराज है? उसके मजबूर करने पर ही मैं अपने बेटे का रिश्ता यहाँ लेकर आई हूँ, इसलिए मुझे मना करने की बजाय अपनी बेटी को रोको, और अगर तुमने मेरी बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब अम्मा अब्बा बुरी तरह घबरा गए थे। अम्मा मुझे गुस्से से देख रही थी। उनकी आंखों में मेरे लिए शदीद गुस्सा था, जबकि मैं नजरें झुकाकर रह गई। दोनों बाजियां भी हैरान थी कि ये मैंने क्या किया है। लेकिन जब अम्मा अब्बा उसे वापस भेजने लगे तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि अम्मा, जो मुझे कोई एतराज नहीं तो आप उन्हें क्यों मना कर रही हैं? अम्मा कहने लगी, जरूर इस जादूगरनी ने कोई जादू किया है, जब भी तू उसकी जुबान बोल रही है। लेकिन मैं कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर मेरी जिद देखकर अम्मा अब्बा ने उसे हाँ कर दी और ये कहकर वो चली गई कि मैं अगले जुम्मे को ही बारात लेकर आ जाऊंगी और अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ रुखसत कर देना। उसके जाने के बाद अम्मा मुझे घूरते हुए कहने लगी, जिस लड़के को तूने अभी तक नहीं देखा तू उससे शादी करना चाहती है, सिर्फ इसी औरत की दौलत देकर। न जाने ये कौन है, कहाँ से आई है, अजीब पुरस्कार सी लगती है ये, और तू इसके बेटे के साथ अपना घर बसाने चली है। अम्मा अब्बा मुझे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुझ पर तो एक ही जिद सवार थी कि मुझे शादी करनी है तो उसी अमीर औरत के बेटे से। फिर अब्बा कहने लगे, बड़ी बेटियों से पहले इसकी रुखसती कर देते हैं, क्योंकि वो औरत बहुत खतरनाक लगती है, कहीं हमारे घर को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अम्मा कहने लगी, सोच ले, समझ ले, अगर तूने दोबारा हमारे पास आई तो फिर हम भी तुझे ये कहेंगे कि तूने हमारी बात नहीं मानी थी। मैंने कहा कि अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आखिर हम कब इस सोच से बाहर निकलेंगे। फिर आखिरकार वही हुआ। अम्मा अब्बा ने हथियार डाल दिए थे। अब मेरी इस जुम्मे को रुखसती थी, लेकिन वो 4 लोगों को लेकर आती और मुझे रुखसत करके ले जाती। फिर उस रात 12 बजे के वक्त वो अपने साथ चंद लोगों को लेकर आई। मैंने देखा दूल्हे ने फूलों का सेहरा पहन रखा था और मैं दुल्हन बनकर बैठी थी, लाल रंग का जोड़ा पहने। लेकिन वो शादी से पहले ढेरों ढेर जेवरात अम्मा को दे गई थी, वो भी मेरे लिए। अम्मा ने वो सारे जेवरात मेरे सामने फेंक दिए थे। फिर कहने लगी, ये तुझे रास नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो कोई खेल खेल रही है। मैंने अम्मा की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जो आज मैंने पाया था वो मुझे मिल गया था। ढेर सारे जेवरात और एक अमीर घराने में शादी, लेकिन मैंने अभी तक अपने होने वाले शौहर को नहीं देखा था। फिर आज रात वो आ गया था। फिर वो औरत कहने लगी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जल्दी अपनी बेटी को रुखसत कर दो। मैं अम्मा के गले मिलना चाहती थी, लेकिन अम्मा मुझसे नाराज लग रही थी। फिर मैंने भी जरा परवाह नहीं की और मैं घर से निकलकर उनके साथ आ गई। आज मैं उसी महल भी जा रही थी। मैंने देखा रास्ते में वैसी ही खामोशी और सन्नाटा था। मैं हैरान भी हुई कि इस औरत के बेटे की शादी है और ये ऐसी लग रही है जैसे सोग में डूबी हो, और वो भी बड़ी ही पुरस्कार लग रही थी। अभी तक मैंने अपने शौहर का चेहरा नहीं देखा था। अब वो मुझे लेकर कहीं जा रहे थे, लेकिन अचानक ही मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो उस घर की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि उनका रुख कहीं और था। अब मैं दुल्हन बनकर उनके साथ जा रही थी। पूछ भी नहीं सकती थी कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तभी वो मुझे एक वीरान से घर में ले गई। मैंने देखा वहाँ और भी लोग बैठे थे। फिर वो औरत बुलंद आवाज में सबसे कहने लगी, आज मेरा मकसद पूरा हो गया। जो मैंने सोचा था वो हासिल कर लिया। अपने बेटे की शादी एक इंसानी लड़की से करती, वरना शायद मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना होती।
मेरी हजारों साल की मांगी हुई मन्नत आखिरकार आज पूरी हो गई। तभी उसने पलटकर मेरा दुपट्टा उलट दिया और सामने खड़े हुए लोगों से कहने लगी, देखो किस कदर खूबसूरत लड़की है, आज से ये मेरे बेटे की बीवी है। तभी एक लड़की आगे बढ़ी और मुझे कहने लगी, जिन्नात की दुनिया में खुशामदीद, आज हमारी दुनिया में तुम्हारा इजाफा हो गया। क्या तुमने अपनी खुशी से इस जिन्सात से शादी की है? मैं अनजान बनकर उस लड़की को देख रही थी। दर हकीकत मुझे उसकी कोई भी बात समझ नहीं आई थी। मेरी हैरानी पर वो कहने लगी, क्या तुम नहीं जानती कि हम सब जिन्नात हैं और ये एक जिन्साती है। इसने कई साल पहले ये मन्नत मांगी थी कि अगर इसके औलाद हुई तो वो अपने बेटे की शादी एक इंसानी लड़की से करेगी। इस मुराद को पूरा करने के लिए ये कई सालों से इंसानों की दुनिया में रह रही है। आखिरकार आज इसका मकसद पूरा हो गया तो ये जिन्नात की दुनिया में वापस आ गई। मैंने देखा सामने खड़ी वो औरत मुझे देखकर इस्तेज़ाइया अंदाज में हंस रही थी। खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं बार बार अपने आप को छूकर देख रही थी कि आया ये हकीकत है या फिर एक ख्वाब देख रही हूँ। ये सामने खड़ी एक खौफनाक शक्ल वाली लड़की मुझे क्या कह रही है? तभी अचानक ही फूलों का सहरा पहने मेरे शौहर ने अपने चेहरे से घूंघट हटाया था। उसे देखकर मैं बुरी तरह चीखें मारने लगी। ख्वाब में नजर आने वाला वो खौफनाक चेहरा आज मेरी आंखों के सामने था। मैं उल्टे कदमों वापस जाने लगी, लेकिन सामने खड़े सब लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया था। तभी वो औरत जो एक जिन्साती थी खौफनाक लहजे में कहने लगी, आज के बाद ये कभी जिन्नात की दुनिया से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये मेरी मन्नत की मांगी हुई लड़की है और अगर ये यहाँ से बाहर चली गई तो मेरी मन्नत खत्म हो जाएगी। मुझे हर हाल में इसे अपने साथ यहीं पर रखना होगा। अब चलो, इसका इस दुनिया में जाने का टाइम हो गया है। वो बड़ी शान से चल रही थी, जबकि दो जिन्सातियों ने मुझे दबोच लिया था। अब वो मुझे अपनी दुनिया में ले गए थे, जो मेरी सोच से भी ज्यादा खौफनाक थी। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। मैं जो रंगीन ख्वाब सजाकर अपनी आंखों में यहाँ आई थी, एकदम से ही सब कुछ मलियामेट हो गया था। अब जैसे ही वो मुझे अपने खंडर नुमा महल में लेकर गए तो मैंने वहीं पर चीखना शुरू कर दिया, ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे वापस जाने दो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। ये दुनिया मेरी नहीं है, यहाँ पर हर चीज मुख्तलिफ है। मैंने देखा सामने खड़ा वो खौफनाक जिन्सात मुझे आंखों से निगलने की कोशिश कर रहा था। वो खौफनाक चेहरे वाली जिन्साती 2 कदम चलती हुई मेरे सामने आई और कहने लगी, देखो मैं इतने सालों से इंसानी दुनिया में रहती थी सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर मैं अपनी मन्नत पूरी ना करती तो मेरे और मेरे बेटे की सारी ताकतें खत्म हो जाती। इसीलिए मुझे ये सब करना जरूरी था। यूं तो कई लड़कियों को मैंने अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन कोई भी लड़की किसी न किसी तरह ये बात जान जाती कि मैं एक जिन्साती हूँ और मेरा बेटा एक जिन्सात। इसीलिए मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन तुम इस कदर सीधी सादी थी कि मेरा मकसद कामयाब हो गया। अब तुमने सारी जिंदगी हम जिन्नात की दुनिया में रहना है, इसलिए अपने आप को एक जिन्साती समझो, एक इंसानी लड़की नहीं। ये भला कैसे मुमकिन था? मैं एक लड़की थी, मैं कभी भी एक जिन्साती नहीं बन सकती थी। मैंने बुरी तरह चीखना चलाना शुरू कर दिया कि मुझे घर जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। मेरे अम्मा अब्बा परेशान हो रहे होंगे। आज मुझे अम्मा याद आ रही थी। उन्होंने मुझे कितना रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी और जिद करके उससे शादी कर ली, उनकी हकीकत जाने बिना ही। मुझे चीखते देखकर वो जिन्साती कहने लगी, इसे ले जाओ कैद खाने में, इसका इलाज यही है, वरना ये ऐसे ही हम सबको परेशान करती रहेगी। अब वो मुझे घसीटते हुए कैद खाने की तरफ लेकर जा रही थी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं था। 3 दिन तक मैं भूखी प्यासी उस कैद खाने में पड़ी रही। किसी ने मुझे खाने का भी नहीं पूछा था। चौथे दिन वो खौफनाक चेहरे वाली जिन्साती आकर कहने लगी, लगता है कि अब तुम काफी सुधर चुकी हो, इसलिए आज तुम्हें खाना भी मिलेगा और तुम्हें इसी कमरे में लेकर जाया जाएगा जहाँ पर मेरा बेटा जिन्सात तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाएगा। ये सुनकर मेरे चेहरे की रंगत बदल गई थी, लेकिन मैं इतनी लागिर हो गई थी कि मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि मैं उनके सामने अब आवाज भी उठा सकती।
फिर जैसे ही 2 जिनजादियां मेरे लिए खाना लेकर आईं तो मैं उस खाने पर टूट पड़ी। मुझे पागलों की तरह खाना खाते हुए देखकर वो जिनजादियां कहने लगी, आखिर कब तक बेचारी एहतजाज करती रहूगी? अब तूने इस एहतजाज का हक खत्म कर दिया। आज रात वो जिनजाद अपनी सुहाग रात मनाएगा। वो इतने सालों से इस बात का इंतजार कर रहा था। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो दोनों जिनजादियां मुझे दुल्हन की तरह तैयार करने लगी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरे साथ ऐसा नहीं करो। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो एक जिनजादी कहने लगी, तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। अब तो जो होना था वो हो गया। वो दोनों बहुत बेरहम लग रही थी। फिर उन्होंने मुझे उसी ख्वाब गाह में पहुंचा दिया। फिर वो जिनजादी सरगोशी में कहने लगी, आज रात तुम यहाँ हो, लेकिन कल से फिर कैद खाने में रहोगी, क्योंकि अब मलिका जिनजादी को तुम पर भरोसा नहीं रहा। मैं सिसक कर रो रही थी, लेकिन मेरा रोता हुआ चेहरा देखने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वो जिनजाद अंदर आया। जैसे ही उसने अपने खौफनाक हाथ मेरी तरफ बढ़ाए तो मैंने दहशत के मारे चीखना शुरू कर दिया। वो इस बात पर बुरी तरह नाराज हो गया था। अचानक ही उसने मुझे दबोच लिया। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। चीख चीख कर मेरी आवाजें इस पूरे महल में गूंज रही थी। तभी सारे मेरे दरवाजे के बाहर इकट्ठे हो गए। वो जिनजादी गुस्से से कहने लगी, इसने तो सबके सामने जाहिर कर दिया कि मैंने इसके साथ जबरदस्ती की है, हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। ये सब तो इसने अपनी खुशी से किया है। ये लड़की बहुत ही मकार और चालाक है। अब मैं इसे ऐसे कैद खाने में डालूंगी जो इसकी जान ले लेगा। मैं तड़प तड़प कर रो रही थी, लेकिन वो बिल्कुल बेरहम बन चुकी थी। फिर मुझे बाजू से घसीटते हुए एक खौफनाक कमरे में ले गई। मैंने देखा वहाँ अजीबो गरीब किस्म के पुतले पड़े हुए थे और अजीब बदबू आ रही थी। इतनी तेज बदबू कि वहाँ खड़ा रहना भी दुश्वार हो रहा था। मैं पागलों की तरह उस कमरे का दरवाजा बजाए जा रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। वो बिल्कुल बेरहम बन चुके थे। ऐसे लग रहा था कि अब मैं कभी भी इस कैद खाने से बाहर नहीं आ सकूंगी और यहाँ ही डर डर कर अपनी जान दे दूंगी। फिर 3 दिन हो गए। मैं भूख प्यास से बिल्कुल ही टूट चुकी थी। मेरे अंदर बिल्कुल दम नहीं रहा था। तभी एक जिनजादी आकर कहने लगी, तुम मुझे बहुत मजलूम लड़की लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। दरअसल इस जिनजादे से मैं शादी करना चाहती थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही मलिका की बहू बनने का शौक था। लेकिन उसने मन्नत मांगी और उस मन्नत की वजह से वो तुम्हें उसकी दुल्हन बनाकर ले आई और मेरे सारे सपने टूट गए। आज मैं बहुत मायूस हो चुकी हूँ, इसलिए मैं उनकी दुश्मन बन चुकी हूँ और मैं तुम्हारे लिए हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें यहाँ से भगा दूंगी, लेकिन उन दोनों माँ बेटे से ये झूठ कहती रहूंगी कि तुम अभी भी कैद खाने में मौजूद हो। जब तक उन्हें खबर होगी तब तक तुम यहाँ से फरार हो चुकी होगी। तो बहुत वक्त गुजर जाएगा और तुम भी बहुत दूर जा चुकी होगी। लेकिन बस तुम जाते ही एक काम करना कि यहाँ से दूर जैसे ही तुम इस दुनिया से बाहर निकलोगी तो एक आमिल तुम्हें जंगल में नजर आएगा। तुम उससे एक गले में पहनने वाला धागा ले लेना। उस धागे की मदद से ये जिनजादी और उसका बेटा तुम्हारे करीब ही नहीं आ सकेंगे। यूं तुम हमेशा के लिए उसके चुंगल से आजाद हो जाओगी। वो तो जिनजादी बड़ी ही मेहरबान थी। मैं उसकी शुक्रगुजार हो रही थी। फिर मैं उदास लहजे में उससे कहने लगी, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है जो तुम मेरी मदद कर रही हो, वरना मैं तो अपनी जिंदगी की उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। फिर वो कहने लगी कि ये मदद मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रही हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि किसी तरह उस जिनजात से मेरी शादी हो जाए। वैसे भी तुम्हारे ऊपर ये जुल्म नहीं होना चाहिए। तुम एक आदमजादी हो और तुम हम जिन्नात की दुनिया में कभी भी नहीं रह सकती। चलो कल रात मैं 12 बजे आऊंगी और तुम्हें खुफिया दरवाजे से फरार करवा दूंगी। मैं रोजाना खाना देने यहाँ आती हूँ, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। मैं तशक्कुर भरी नजरों से उसे देख रही थी। फिर वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। मुझे यहाँ एक लम्हा भी बैठना दुश्वार हो रहा था। मुझे उस जिनजादी की भी फिक्र हो रही थी कि कहीं मेरे यहाँ से फरार होने के बाद उससे कोई नुकसान ना पहुँच जाए। दूसरी तरफ मुझे अम्मा अब्बा की भी फिक्र थी कि न जाने वो मुझे अब कबूल करेंगे या नहीं, क्योंकि अम्मा ने पहले ही कह दिया था
कि अगर तुम नाकाम वापस लौटी तो हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, क्योंकि तुम ये सब जिद में कर रही हो। फिर दूसरी रात वो जिनज़ादी मेरे पास आई थी। मैं पूरी शिद्दत से उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसने मुझे एक काले रंग की चादर पहनने के लिए दी और कहने लगी, इसे पहनकर तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से फरार हो जाओ, इससे पहले कि किसी को इस बात की खबर हो। अब मैं उस खुफिया दरवाजे से बाहर आ रही थी। तभी उसने मुझे आवाज देकर रोका और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आगे आने वाली जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये कहते साथ ही उसने एक लाल रंग की पोटली मेरे हाथ में थमा दी। फिर सरगोशी में कहने लगी, ये सारे जेवरात हैं जो आगे चलकर तुम्हारे काम आएंगे। देखो, अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कबूल भी नहीं किया तो तुम इनके सहारे अपनी जिंदगी गुजार लेना। अगर जिंदगी रही तो हमें फिर से तुमसे मुलाकात करने जरूर आऊंगी। बस मेरे लिए दुआ करना कि किसी तरह मेरी शादी उस जिनज़ादे से हो जाए और मेरी सालों की तपस्या और सारी मेहनत जाया ना हो, क्योंकि मैं उससे पाने के लिए बेकरार हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और पागलों की तरह वहाँ से भागने लगी। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती थी कि किसी को मेरी परछाई भी ना मिले। भागते भागते आखिरकार मैं एक घने जंगल में पहुँच गई। अब मैं जिन्नात की दुनिया से काफी आगे आ गई थी। मैंने देखा यहाँ पर एक झोंपड़ी है। तभी अचानक मुझे उस जिनज़ादी की बात याद आई। उसने भी तो मुझे किसी झोंपड़ी में आने को कहा था। जैसे ही मैंने उस झोंपड़ी के अंदर कदम रखा तो सामने बैठा एक बूढ़ा शख्स कहने लगा, उसी जिनज़ादी ने तुम्हें भेजा है जो सबकी मदद करती है। मुझे यकीन था कि वो तुम्हारी भी मदद जरूर करेगी। आओ, मैं तुम्हें वही धागा देता हूँ जो मैं सबको देता हूँ। मैं हैरान थी कि उससे पहले से ही कैसे खबर हो गई। फिर वो कहने लगा, हमने पहले भी काफी इंसानों की मदद की है जो गलती से इस जिन्नात की दुनिया में चला जाता है तो हमेशा के लिए उनकी कैद उसका ठिकाना बन जाती है, लेकिन जिनज़ादी उन इंसानों को इस कैद से आजाद कर देती है और फिर उन्हें मेरे पास भेज देती है। मैं हमेशा के लिए उनका ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से तोड़ देता हूँ ताकि आगे चलकर उनकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं हो। ये दोनों तो बड़े ही नेक थे। काश उनकी जिंदगी में कोई गम नहीं हो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। फिर वो शख्स कहने लगा, मेरी दुआ है कि तुम्हें तुम्हारे घर वाले कबूल कर ले, क्योंकि माँ बाप जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है। उनकी आंखें तजुर्बा रखती हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी होती है, इसलिए आइंदा कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका दिया था। फिर जैसे ही उस बूढ़े शख्स ने मुझे जाने की इजाजत दी तो अब मैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए बेकरार हो गई। एक सुनसान सड़क थी, उस पर एक भी सवारी नहीं थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि सुबह का उजाला फैलने तक मैं जरूर अपने शहर पहुंच जाऊंगी। रास्ता पूछते पूछते बिलाखिर मैं अपने शहर पहुंच गई। उस शहर के छोटे से इलाके में हमारा घर था। मेरा दिल धड़क रहा था। न जाने अम्मा अब्बा मुझे देखकर क्या कहेंगे। वो मुझे लानत मलामत करेंगे कि तुम कैसी लड़की हो, हमने तो तुम्हें कहा था कि आइंदा हम तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे और तुम अपना मुंह उठाकर यहाँ आ गई। जैसे ही मैं अपने घर के सामने पहुंची तो एक अजीब सी वीरानी ने मेरा इस्तकबाल किया था। फिर मैं घर के अंदर चली आई। मैंने देखा दोनों बहनें सिलाई मशीन पर झुकी हुई थीं, जबकि अम्मा किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। अब्बा तो घर पर ही नहीं थे। अचानक ही बाजी ने मुझे देखा तो खुशी से चीख मारकर कहने लगी, अरे फरीद तुम, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। बाजी ने मुझे गले से लगा लिया था। दोनों बाजी मुझे बहुत प्यार करती थी। जबकि अम्मा किचन से निकलकर आकर कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है इससे मिलने की, हमने इससे सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। अब मैं अम्मा की बात पर उनके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी, अम्मा आप तो बिल्कुल ठीक थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाही। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। उनकी हकीकत मुझ पर खुल चुकी है। बाजी हैरान होकर कहने लगी, कैसी हकीकत? जब मैंने उन्हें बताया कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक जिनज़ादी थी और अपने बेटे की मन्नत पूरी करने के लिए इंसानों की दुनिया में आई थी, सिर्फ उस जिनज़ादे की शादी किसी लड़की से करवाने के लिए, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, तुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा मेरी बेटी, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं शर्मिंदगी से कहने लगी, अम्मा आपकी तो कोई गलती नहीं है,
सारी गलती मेरी है, शायद ये मुझे मेरी नाफरमानी की सजा मिली है। अम्मा ने मुझे माफ कर दिया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैं डरे डरे से लहजे में अम्मा से कहने लगी, अम्मा, आपने बाजियों की शादी क्यों नहीं की? आप तो कह रही थी कि आपने इनका रिश्ता तय कर दिया था। अम्मा उदासी से कहने लगी, बेटा, जहाँ पर जहेज नहीं होता वहाँ पर बेटियों की शादी होना बहुत मुश्किल है। अचानक ही मेरे जहन में झमाका हुआ। जिनजादी का दिया हुआ वो कीमती तोहफा अभी तक मेरे पास मौजूद था। फिर मैंने जैसे ही वो सारे जेवरात अम्मा को दिखाए तो दोनों बाजी और अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। अम्मा कहने लगी, खुदा ऐसे मदद करता है। मुझे यकीन नहीं था। मैं तो जिन रिश्तों के लिए रो रही थी, लेकिन क्या जानती थी कि खुदा मुझे इससे बेहतर अता करेगा। फिर अम्मा कहने लगी, कहीं वो अब दोबारा फिर से तेरे पीछे तो नहीं आ जाएंगे? तो मैं कहने लगी, नहीं अम्मा, उस जिनजादी ने मुझे एक ऐसा तोड़ बताया है कि अब वो कभी मेरे पास नहीं आएंगे। ये सुनकर अम्मा खुश हो गई थी। फिर मैं खुश थी कि मैंने अम्मा की सही वक्त पर मदद की। अब्बा भी मुझे देखकर खुश हो गए थे। जब उन्हें अम्मा ने सारी बात बताई तो उन्हें भी इन बातों पर यकीन नहीं आया। फिर जब मैंने जिनजादी के दिए हुए जेवरात दिखाए तब अब्बा को यकीन आ गया कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यूं कई दिन गुजर गए। फिर दोनों बड़ी बहनों की शादी धूमधाम से हो गई। मैं खुश थी कि उनके जहेज में कोई कमी नहीं रही थी। साथ ही अब्बा का कारोबार भी खूब तरक्की कर रहा था। अब हमारे मोहल्ले में एक इज्जत थी, लेकिन सारे ही लोग आकर अम्मा अब्बा से कहते कि तुमने तो अपनी छोटी वाली बेटी की शादी कर दी थी, तो फिर ये वापस क्यों आ गई? लेकिन इस बात का जवाब ना तो अम्मा उन्हें देती थी और ना ही मैं, क्योंकि अम्मा अब्बा ने सख्ती से मना कर दिया था कि उन जिन्नात का जिक्र किसी के सामने नहीं करना, क्योंकि ऐसे वो दुश्मनी इख्तियार कर लेते हैं। अब मैं एक बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी और मैंने अपनी जिंदगी का फैसला अपने माँ बाप के हाथ में दे दिया था, क्योंकि मैं समझती थी कि माँ बाप से बेहतर फैसला कोई और नहीं कर सकता। उनकी जहाँ दीदा नजरें हर चीज पहले से ही भांप लेती हैं। मुझसे बहुत गलती हुई जो मैंने उनके साथ ये सब किया, लेकिन एक रात बड़ी ही अनोखी बात हुई। जब वो जिनजादी मेरे पास आई थी, फिर वो सरगोशी में कहने लगी कि मेरी शादी उसी जिनजादे से हो गई है और आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सालों की ख्वाहिश पूरी हो गई। फिर मैं उससे कहने लगी कि मैंने भी तुम्हारे लिए दुआ की थी कि तुम्हारे दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाएं, क्योंकि तुम एक मददगार नेक जिनजादी हो। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। मैं इस हसीन मुलाकात को शायद जिंदगी में कभी फरामोश नहीं कर सकती थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।